بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ایم علی آپ سبھی کا حیدری ہسٹری پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ LT گریڈ سن 2018 میں پوچھے گئے اردو کے سوالات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ پچھلی 3 ویڈیوز میں ہم نے 60 سوالات تفصیل سے حل کیے ہیں۔ سوالوں سے متعلق اہم جانکاریاں بھی آپ کو دی ہیں، جو کہ اردو کے سبھی کمپٹیٹیو ایگزامز کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ساتھ ہی ہماری سلیبس کے مطابق کمپلیٹ کریش کورس کی جو سیریز چل رہی ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھیے، آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 61 سے ہمیں شروع کرنا ہے۔ یہ سبھی سوالات ہم نے کر لیے تھے۔ چلیے کوشچن نمبر 61 کہاں گیا؟ جی یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ کوشچن نمبر 61، مرزا غالب کس صدی کے شاعر تھے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 میں پیدا ہوئے اور آپ کا انتقال کب ہوا تھا؟ 1869 میں، جس سال گاندھی جی کی پیدائش ہوئی۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو 1801 کے بعد 1899 تک کا زمانہ 19ویں صدی کہلائے گا، یعنی کہ مرزا غالب 19ویں صدی کے شاعر ہیں۔ مرزا غالب کو حیوان ظریف کہا جاتا ہے۔ آپ کی سوانح حیات لکھی گئی یادگار غالب، جس کو حال ہی نے لکھا تھا، اس میں مرزا غالب کو حیوان ظریف کہا گیا۔ آپ کا پورا نام اسد اللہ خان تھا، عرفیت مرزا نوشہ تھی۔ شروع میں آپ کا تخلص اسد تھا، بعد میں غالب کر لیا۔ انہوں نے کلکتہ کا سفر کیا تھا، 1826 میں روانہ ہوئے اور 1828 میں پہنچے تھے۔ پٹنہ، مرشد آباد اور بنارس ہوتے ہوئے یہ کلکتہ گئے تھے۔ غالب کی ملاقات لکھنؤ میں میرانیز سے ہوئی تھی، یعنی کہ یہ کانپور اور لکھنؤ میں بھی رکے جب یہ کلکتہ جا رہے تھے۔ غالب کی اگر میں تصانیف کی بات کروں تو پرتوستان، دستمبو، قاطع برہان، پنج آہنگ، لطائف غیبی، شبدچیں اہم ہیں۔ خطوط کے مجموعوں میں عود ہندی اور اردو معلیٰ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ان کی مثنویوں میں باد مخالف، مثنوی ابر گوہربار اور چراغ دیر بہت زیادہ اہم ہے۔ چراغ دیر کا بہت لوگوں نے ترجمہ کیا، منظوم ترجمہ حنیف نقوی نے کیا تھا مثنوی چراغ دیر کا، جس میں بنارس کا بھی ذکر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 62، گل نغمہ کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ بتائیے۔ گل نغمہ کے لیے ہی شاعر کو اردو میں سب سے پہلے گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا۔ کسے ملا تھا؟ 1969 عیسوی میں فراق گورکھپوری کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا ان کے شعری مجموعہ گل نغمہ کے لیے، یعنی کہ فراق گورکھپوری کا مجموعہ کلام ہے گل نغمہ۔ فراق گورکھپوری کے اور بھی مجموعے کلام ہیں جو کہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، تو غور سے سنیے گا، میں وربلی بتا رہا ہوں۔ فراق گورکھپوری کا روح کائنات ہے، روپ ہے، تحفہ خوشتر ہے، رمز و کنایات ہے، مشعل ہے اور ہزار داستان، غزلستان، شعرستان، دھرتی کی کروٹیں، گل بانگ، پچھلی رات، نغمہ نما اور چراغاں، گلہائے پریشاں، یہ سب فراق گورکھپوری کے مجموعہ کلام ہیں۔ اردو کی عشقیہ شاعری آپ کی تنقیدی کتاب ہے اور من آنم کے نام سے خطوط کا مجموعہ ہے۔ کوشچن نمبر 62، جی کوشچن نمبر 62 تو یہی تھا۔ کوشچن نمبر 63 پہ آتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کی نظم مستقبل، اس کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ تو مشرقی تہذیب کا زوال
یہ اکبر الہ آبادی کی نظم مستقبل کا موضوع ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اکبر الہ آبادی کی کچھ اہم نظمیں آپ کو بتا دوں۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اکبر الہ آبادی کو لسان العصر کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں طنز و مزہ بہت زیادہ ہے۔ اکبر خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ شاہد معنی نے اوڑا ہے ظرافت کا لحاف۔ انہوں نے اپنے کلام میں مغربی طرز حیات کو طنز و تضحیک کا نشانہ بنایا اور علی گڑھ تحریک یعنی سر سید تحریک کے یہ سخت مخالف تھے۔ ان کی شاعری میں انگریزی الفاظ کثرت سے استعمال ہوئے ہیں۔ اکبر، بدھو، جمن، اونٹ، ٹٹو، گائے، ریل گاڑی جیسے الفاظ بھی انہوں نے ظرافت کے لیے استعمال کیے ہیں۔ جلوہ دربار دلی، برق کلیسا، فرزی لطیفہ، مسیمی بدن، گادھی نامہ، کرزن سبھا، وفات سر سید مرحوم پر، یہ سب اکبر الہ آبادی کی اہم نظمیں ہیں۔ کوشچن نمبر 64، اردو کے 2 مشہور شاعروں کے نام بتائیے جن پر علامہ اقبال نے نظم لکھی۔ تو داغ پر مرثیہ داغ لکھی اور مرزا غالب پر بھی ایک نظم ان کی ہے، یعنی کہ آپشن سی درست ہوگا۔ علامہ اقبال کے 4 شعری مجموعے کون کون سے ہیں؟ باغ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز۔ ان میں سے میر کا معاصر یعنی ہم عصر کون نہیں ہے؟ دیکھیے مصحفی اور یقین تابہ یہ میر کے ہم عصر ہیں۔ غالب جو ہے یہ میر کے ہم عصر نہیں ہے، اسی لیے تو غالب کہتے ہیں سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اس شعر سے ہی آپ اندازہ لگا لیجئے یہ میر کے ہم عصر نہیں تھے۔ مرزا غالب یہ مومن خواہ مومن اور ذوق دہلوی اور بہادر شاہ ظفر کے ہم عصر تھے۔ مصحفی، یقین، تابہ، سوز، سودا، درد یہ سب ہم عصر شاعر تھے۔ جب میر تقی میر سے پوچھا گیا کہ آپ کے ہم عصر شاعروں میں ٹوٹل کتنے شاعر ہیں، تو انہوں نے پہلے کہا 2.5 شاعر، ایک تو میں پورا شاعر ہوں اور ایک سودا پورا شاعر ہیں اور آدھے شاعر ہیں درد۔ پھر بعد میں انہوں نے پونا شاعر کہہ دیا سوز کو، ٹھیک ہے۔ اور میر اور سودا کا جو زمانہ ہے یہ اردو شاعری کا عہد زریں گولڈن پیریڈ آف اردو پوئٹری کہلاتا ہے۔ فیض کے مجموعوں کی صحیح ترتیب دیکھیے، فیض احمد فیض کے کل 7 مجموعے ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ نقش فریادی۔ نقش فریادی کہیں پہ بھی نہیں دیا گیا ہے۔ دوسرا کون ہے؟ دست صبا۔ دست صبا سب سے پہلے والے آپشن میں ہے، تو یہی آپ کا صحیح جواب ہوگا۔ دیکھیے یہاں پہ جو فیض احمد فیض کے 7 شعری مجموعے یہاں پہ دیے گئے ہیں، میں آپ کو پڑھ کے بس سنا دیتا ہوں۔ پہلا شعری مجموعہ ہے نقش فریادی، کب شائع ہوا؟ 1941 میں۔ اس کے بعد ان کا دوسرا شعری مجموعہ ہے دست صبا، زندہ نامہ تیسرا ہے، چوتھا دست تہ سنگ ہے، پانچواں سروادی سینہ، چھٹا شام شہر یاراں اور ساتواں میرے دل میرے مسافر ہے۔ یہ 7 شعری مجموعہ یکجا کر کے نسخہ وفا کے نام سے شائع کرایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے کوشچن نمبر 67، ان میں سے کون سا مجموعہ جگر مراد آبادی کا نہیں ہے؟ دیکھیے جگر مراد آبادی کے 3 مجموعے ہیں، آتش گل، داغ جگر اور شعلہ طور۔ اب بچا سرود زندگی، تو سرود زندگی یہ جگر کا نہیں ہے۔ اچھا جگر کا نہیں ہے تو بھائی کس کا ہے؟ اصغر کا ہے۔ اصغر کے شعری مجموعوں میں آپ کو نشاط روح اور سرود زندگی یہ 2 اہم شعری مجموعے ہیں اصغر گونڈوی کے۔ ان کا جو سرود زندگی ہے یہ 1934 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ سارا ایکسپلینیشن آپ کو PDF میں موجود ہے، PDF آپ کو دستیاب کرائی جائے گی ہمارے ٹیلی گرام چینل پہ،
जैसे ये पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो LT ग्रेड की कंप्लीट क्रैश कोर्स की वीडियो सीरीज चल रही है उसकी PDF डेली आपको दस्तयाब कराई जाती है। तो पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स प्लस PDF सब कुछ मुफ्त में फ्री ऑफ कास्ट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। इससे अच्छी क्लासेस आपको फ्री में छोड़िए, पेड भी कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि उर्दू ने हमको बहुत कुछ दिया है, तो बदले में हम भी उर्दू के छात्रों के लिए कुछ कर रहे हैं। हम चाहें तो अभी पेड कोर्स लॉन्च कर दें। बहुत सारे मैसेजेस कॉल्स आती हैं कि सर आपके कोर्स की कितनी कीमत है, आप पेड कोर्स कराइए। लेकिन हम सोच रहे हैं कि फ्री ऑफ कास्ट आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड कराएं। अल्लाह का करम मुझ पर है और उर्दू की खिदमत करते हुए मैं कुछ अपनी जीविका चला भी ले रहा हूँ, तो हम आपसे पैसा क्यों लूटूं जैसे दूसरे यूट्यूबर्स लूट रहे हैं और फालतू के मवाद इधर उधर के पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट आपको सब कुछ मिल रहा है। बहुत तड़क भड़क और दिखावा स्मार्ट बोर्ड वगैरह नहीं है, मोबाइल फ़ोन से ही पढ़ाते हैं। लेकिन हम जो कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, मुझे ये उम्मीद है कि और कोई ऐसा नहीं प्रोवाइड कराएगा, वो भी फ्री। तो फ्री में मिल रहा है तो आप कम से कम लाइक और शेयर तो करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल। चलो, अल्लामा इकबाल की नज़्म है हिमालय। सबसे पहले किस रिसाला में शाये हुई? तो ये रिसाला मखज़न में शाये हुई थी। अब देखिए, ये मखज़न में कब शाये हुई थी? 1901 में। मखज़न का पहला जो नंबर था। अच्छा, रिसाला मखज़न किसका है? कल ही हमने रोमानवी तहरीक वाली जो क्लास करवाई है उसमें आपको बताया है। तो रिसाला मखज़न किसका है? चूँकि मैं ये बता चुका हूँ, इसलिए आप लोग इसका जवाब कमेंट में बताइए, ठीक है। कुछ आप लोग भी तो करिए। अब चूँकि यहाँ पे अल्लामा इकबाल से मुतल्लिक सवाल आ गया है, तो मैं चाहता हूँ कि अल्लामा इकबाल के जो 4 शेरी मजमूए हैं उन्हें बता दो, क्योंकि इनके शेरी मजमूओं की तरतीब पूछ ली जाती है, ठीक है। जिस तरह से ऊपर एक सवाल आया था ना फैज़ के शेरी मजमूओं की तरतीब, उस तरह से अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूओं की तरतीब अक्सर पूछ लेता है। तो याद रखिएगा, अल्लामा इकबाल का जो पहला शेरी मजमूआ है वो बागे दरा है, 1924 ईस्वी में शाया हुआ था। दूसरा बाले जिब्रील है, 1935 ईस्वी में शाया हुआ। तीसरा ज़रबे कलीम है, 1936 में शाया हुआ। और चौथा अरमुगाने हिजाज है, जो आधा उर्दू और आधा फ़ारसी में। अल्लामा इकबाल के अगर आप नसरी तसानीफ़ की बात करें तो इल्मुल इक्तिसाद है, मसनवी असरार खुदी है, दीगर तसानीफ़ में रमूज़ बेखुदी है और पयाम मशरिक़ है, ज़बूर अजम है, जावेद नामा है। ये सब अल्लामा इकबाल की दीगर तसानीफ़ हैं, ये 4 शेरी मजमूओं के अलावा, ठीक है। अल्लामा इकबाल से मुताल्लिक अलग से एक तफसीली क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सब कुछ अल्लामा इकबाल के बारे में बताया जाएगा। बस यहाँ पे इतना जान जाइए कि अल्लामा इकबाल की ये नज़्म हिमालय जो है बागे दरा में शामिल है। और बागे दरा की ये पहली नज़्म, ये भी पूछता है कि बागे दरा की पहली नज़्म कौन सी है? तो हिमालय है। कहाँ शाये हुई थी? रिसाला मखज़न में। कब? 1901 में। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा जा रहा है कि मसनवी गो शोरा और मसनवी के नामों में कौन सी तरतीब गलत है? देखिए, मसनवी सिरुल बयान उर्दू की सबसे मशहूर मकबूल मसनवी, इसमें बामुसम्मा कही जाती है मीर हसन की, सही बात है। साकी नामा ये तसनीफ़ अल्लामा इकबाल की है। हफीज़ जालंधरी की मसनवी है, मसनवी शाहनामा इस्लाम, जो कि काफ़ी ज़्यादा अहम है, ठीक है। रक़्स हयात ये जमील मजहरी की नहीं है। जमील मजहरी की एक मरसिया है मिज़राब शहादत के उन्वान से, वो पूछी जाती है। तो रक़्स हयात ये किसकी है? तो ये परवेज़ शाहिदी की है, ठीक है। परवेज़ शाहिदी की है रक़्स हयात, जमील मजहरी की नहीं है। सबरस का सन तसनीफ़ क्या है? सबरस उर्दू की पहली नसरी किताब या फिर उर्दू की पहली दास्तान सबरस है, ठीक है। कब लिखी गई? तो ये 1045 हिजरी व मुताबिक 1635
ईस्वी में लिखी गई। अब चूंकि सबरस से मुतल्लिक ये सवाल आया है तो मैं बता दूं कि ये अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई थी। मुल्ला वजही की एक मसनवी भी है कुतुब मुश्तरी, वो 1018 हिजरी व मुताबिक 1018 हिजरी व मुताबिक 1609 ईस्वी में लिखी गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, जाने आलम और माह तलअत ये दो किरदार हैं, ये किस दास्तान के हैं? रजब अली बेग सरूर की एक दास्तान है फसाने अजायब, 1824 में लिखी गई, जिसमें लखनऊ की तहजीब मुआशरत पेश है, लेकिन ये दास्तान कानपुर में हकीम असद अली खान की फरमाइश पर लिखी गई थी। तो इसमें जो किरदार है वो जाने आलम और माह तलअत का है। अंजुमन आरा, महर निगार, ये सब भी इसके किरदार हैं। इसमें बंदर को तकरीर करते हुए दिखाया गया है, इसमें नारियल फोड़ा गया है जिससे अजदहे निकले थे। तो ये सब पॉइंट भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दास्तान फसाने अजायब रजब अली बेग सरूर की है। इनकी दीगर तसानीफ में शगुफ़े मोहब्बत, गुलजार सरूर, शबनमिस्तान सरूर, फसाने इबरत और सरूर सुल्तानी अहम है। इनकी एक किताब पर मिर्ज़ा गालिब ने तकरीज लिखी थी, वो कौन सी है? तो गुलजार सरूर पे मिर्ज़ा गालिब ने तकरीज लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 72, बरगे ने ये शेरी मजमुआ है, किसका है? सैयद नासिर रज़ा काज़मी, यानी नासिर काज़मी का ये शेरी मजमुआ है। ठीक है, नासिर काज़मी के दीगर शेरी मजमुओं में दीवान है, पहली बारिश है, निशाते ख्वाब है, सर की छाया है, ये सब नासिर काज़मी के शेरी मजमुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मैंने बता दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 73, कौन सी सिन्फ दर्ज में से कौन सिन्फ गज़ल का मुखालिफ नहीं है? देखिए सिन्फ गज़ल के बारे में बहुत मशहूर कौल है कि उर्दू शायरी की आबरू है। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू, ये किसका कौल है? रशीद अहमद सिद्दीकी का। तो रशीद अहमद सिद्दीकी उर्दू गज़ल के मुखालिफ नहीं है। कलीमुद्दीन अहमद ने इसको काफिर सिन्फ सुखन नहीं, कलीमुद्दीन अहमद ने इसको काफिर सिन्फ सुखन तो इसको आले अहमद सरूर ने कहा था, और ऐसे ही कुछ कहा था कलीमुद्दीन अहमद ने। गज़ल के बारे में कुछ कहा था, मेरे ज़हन में अभी आएगा तो मैं बताऊंगा। अज़मतुल्लाह खान ने कहा था कि गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ी से उड़ा देनी चाहिए, और हाली ने गज़ल को बेवक्त की रागनी करार दिया था, और नीम वहशी सिन्फ़ सुखन, हाँ कलीमुद्दीन अहमद ने गज़ल को नीम वहशी सिन्फ़ सुखन कहा था। ठीक है, तो ये सब तो गज़ल के मुखालिफ हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी गज़ल की तारीफ़ में कहते हैं कि गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज़ है। उर्दू शायरी की आबरू है, गज़ल शायरी नहीं तहज़ीब है। हमारी तहज़ीब गज़ल में और गज़ल हमारी तहज़ीब में ढल चुकी है। शायरी का नाम आते ही मेरा ज़हन गज़ल की तरफ माइल हो जाता है। शायरी ज़ेवर की मोहताज है और ज़ेवर गज़ल का मोहताज है। ये सभी बातें रशीद अहमद सिद्दीकी गज़ल के बारे में कहते हैं, यानी कि ये गज़ल के मुखालिफ नहीं हैं। गज़ल नकाबपोश आर्ट है, चावल पर कुलवल्ला लिखने का आर्ट है, बड़ी काफिर सिन्फ़ सुखन है। ये आले अहमद सरूर का कौल है। शेरुल अजम जिल्द चहारुम का ताल्लुक़ किससे है?
शेर उल अजम ये किसकी किताब है? शिबली नोमानी की किताब है। 5 जिल्दों पे ये मुश्तमिल है। इसमें आपको हाल ही के तनकीदी नज़रियात देखने को मिलते हैं। सॉरी, हाल ही के नहीं, चूँकि शिबली की किताब है तो शिबली के दिखेंगे ना, बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है। 5 जिल्दों पे मुश्तमिल शिबली की ये किताब जो है, 4 जिल्दें शिबली की ज़िंदगी में शाये हुई थी। 5वीं जिल्द शिबली की वफ़ात के बाद 1918 ईस्वी में शाये हुई थी। इसमें आपको शिबली के तनकीदी नज़रियात देखने को मिलते हैं। शिबली की दीगर तसानीफ़ में मुसलमानों की गुज़िश्ता तालीम, अल-मामून, सीरत-उन-नोमान, सफ़रनामा रूम व मिस्र व शाम, अल-ग़ज़ाली, सवानिह मौलाना रूम, मवाज़िन अनीस व दबीर और सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हैं। देखिए, मवाज़िन अनीस व दबीर इनकी एक ऐसी किताब है जो कि उर्दू तनकीद में या फिर उर्दू में तक़ाबुली मुतालिया की पहली किताब है, जिसमें अनीस और दबीर का तक़ाबुली मुतालिया किया गया है। इससे मुताल्लिक़ आगे सवाल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा कहे जाने वाले मुसन्निफ़ीन कौन है? देखिए, उर्दू लिटरेचर की जो अनासिर खमसा हैं ये किसके मुताबिक हैं? एक मजमून लिखा था मेहदी अफ़ादी ने। मेहदी अफ़ादी रोमानवी राइटर हैं, रोमानवी मुसन्निफ़ हैं। उन्होंने उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा के उन्वान से एक मजमून लिखा, जिसमें उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, डिप्टी नज़ीर अहमद, हाली और शिबली, इन 5 लोगों को उर्दू लिटरेचर का अनासिर खमसा करार दिया। बाकी ऑप्शन गलत है, क्योंकि एक में वक़ारुल मुल्क है, ये शिबली के रफ़ीक ज़रूर हैं, अनासिर खमसा में नहीं शामिल है मेहदी के मुताबिक। मोहसिनुल मुल्क, ज़काउल्लाह ये सब नहीं शामिल हैं, ठीक है, मेहदी अफ़ादी के मुताबिक उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा में। कौन कौन शामिल है? सर सैयद, आज़ाद, नज़ीर, हाली और शिबली। वो तलवारों की आबदारी नश्तरों में भर देते थे। तो ये जो बात है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किसके बारे में लिखी? तो ये बात उर्दू कसीदे के नक्काश अव्वल कहे जाते हैं, सौदा, उनके बारे में लिखी। देखिए, सौदा के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई, जैसे कि एहतशाम हुसैन ने सौदा के बारे में लिखा कि वह अपने कलम की नोक जहर में बुझा लेते थे और नज़मों से आग की लपटें निकलने लगती थीं। मीर हसन ने सौदा को कसीदा व हिज्व में साहिब यदे बैज़ा बताया। कसीदे का नक्काश अव्वल सौदा को किसने कहा था? मुसहफ़ी ने कहा था। अगर सौदा न होते तो उर्दू कसीदे को ज़ेरे बहस लाना फजूल होता। ये बात इमदाद इमाम असर ने कही थी, काशिफुल हक़ाइक़ के मुसन्निफ़ इमदाद इमाम असर ने। कसीदा तो ख़त्म मिर्ज़ा सौदा पर हुआ, ये किसने कहा था? मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने। गुलशन हिंद जो तज़किरा लिखा था, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने ये बात कही, कसीदा तो ख़त्म मिर्ज़ा सौदा पे हुआ। तो ये सारी बातें मिर्ज़ा सौदा से मुतल्लिक़ आपने जान ली। मिर्ज़ा सौदा उर्दू कसीदे का सबसे बड़ा नाम। इनके मशहूर कसीदे बाबुल जन्नत, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में, कोहे पैकर, रज़मिया बहार, सुबह सादिक, तज़हीक रोज़गार वगैरह हैं, ठीक है। इनका एक कसीदा जो है, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, न टूटी शेख से जुन्नार तस्बीह सुलेमानी, ये इनका कसीदा है। 48 अशार पर मुश्तमिल है। दर नाते रसूल करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 77, हमारी शायरी का मुसन्निफ़ कौन है? हमारी शायरी किताब मसूद हसन रिज़वी अदीब की है। ये किताब मुक़द्दमा शेर व शायरी, हाल ही की किताब मुक़द्दमा शेर व शायरी के जवाब में लिखी गई थी। नज़र और नज़रिए, ये किताब किसकी है? तो आले अहमद सुरूर की है। आले अहमद सुरूर की किताब नज़र और नज़रिए है। इसके अलावा आले अहमद सुरूर की जो अहम तसानीफ़ हैं कौन कौन सी हैं, तो गौर से सुनिएगा। मैं वर्बली आप लोगों को आले अहमद सुरूर की अहम तसानीफ़ बताने वाला हूँ।
तनकीद क्या है? आले अहमद सरूर की किताब है। अदब और नज़रिया, ये किताब भी आले अहमद सरूर की। नज़र और नज़रिए के अलावा अदब और नज़रिया, ये किताब किसकी? आले अहमद सरूर की है। मुसर्रत से बसीरत तक, मुसर्रत से बसीरत तक ये किताब आले अहमद सरूर की है। पहचान और परख, फ़िक्र रोशन, अफकार के दिए, ये सब किताबें आले अहमद सरूर की हैं। इनके शेरी मजमूए का नाम है सलसबील, ख्वाब और खलिश, ज़ौक़े जुनू। आले अहमद सरूर की खुद नविश्त का क्या नाम है? ख्वाब बाकी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, उर्दू में तकाबली तनकीद की बाज़ाब्ता तौर पर इब्तिदा करने वाले नाकिद कौन हैं? तो मौलाना शिबली नोमानी। अल्लामा शिबली नोमानी ने 1906 ईस्वी में एक किताब लिखी जिसमें आपने अनीस और दबीर का तकाबली मुतालिया किया। उस किताब का नाम था मवाज़न अनीस व दबीर। 1907 में ये पहली बार शाये हुई और इसी से तकाबली तनकीद की बाज़ाब्ता शुरुआत हुई। इसमें इन्होंने अनीस को बरतर साबित करने की कोशिश की है। चलो, मिर्ज़ा गालिब की पहली सवानह उमरी किसने लिखी थी? तो यादगार गालिब लिखी गई 1897 में। देखिए, उर्दू में सवानह उमरी लिखने की शुरुआत हाल ही नहीं की थी। सबसे पहले हयाते सादे लिखी, फिर यादगार गालिब, उसके बाद सर सैयद की सवानह हयात, हयाते जावेद लिखी। तो हमने आपसे एक सवाल भी पूछा था, रिसाला मखज़न किसने जारी किया था? उसका जवाब आप लोग कमेंट में बताएं और हमारी इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।